Good morning, students. Again, this is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, students, we have already discussed about the poem name called Not the Marble, Not the Gilded Monuments. Already we have discussed the poem, and actually that poem was a little bit long. Okay, so that is why I couldn't complete another question. Okay, already we have discussed about the author, at the same time introduction of the poem, summary of the poem, central idea of the poem. So today we are going to discuss about the Shakespearean and Miltonic sonnets comparison. Okay, so what is the difference between Shakespeare sonnet at the same time Miltonic sonnet? Okay, so this is also question number 2 for the BA first year students, those who are studying in Rajasthan University. Write an essay on the sonnet in English with a special reference to Shakespearean and Miltonic sonnet. So already almost 70% material already I have provided within one video, and the rest of material that I am going to provide by this video lecture. Okay, so if newly anyone is watching this video, so I have a request, please subscribe, at the same time hit the bell icon. Okay, a sonnet is a 14-line poem with a fixed rhyme scheme. Okay, number one, we need to understand the sonnet is a 14 line. Okay, and there is fixed rhyming scheme. Just as Bald gives the poet an opportunity to tell the story brief in a verse. So actually there is the short poem. This is called very short poem, and very briefly something is going to be explained or going to be demonstrated. The sonnet is a challenge to the poet to express an idea or mood within the limit of 14 lines. If the poet has any idea, if the poet has anything he want to say, that he has to say that within 14 lines. अगर पोइट को कोई आइडिया व्यक्त करना होता है, पोइट को कुछ कहना होता है, बहुत ही ब्रीफली उसको कहना पड़ता है, और वो भी 14 लाइन में ही कहना पड़ता है. तो इसीलिए सनेट जो जितना भी होता है, सोनेट जितना भी होता है, वो सभी 14 लाइन में होता है. ठीक है, वो सभी 14 लाइन में होता है. उसका सारा जो निचोड़ है, जो भी वो कहना चाहता है, वो 14 लाइन में ही उसको क्या करेगा, वो पूरा करेगा. अपना जो आइडिया है, वो आइडिया को वो 14 लाइन में ही पूरा करेगा. इन द ट्रेडिशनल सोनेट इट वाज द कस्टम टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्स्ट 8 लाइन एंड द लास्ट 6 लाइन. तो ट्रेडिशनल वे पे कैसे किया जाता है, सब पहले 8 लाइन में लिखे जाते हैं और उसके बाद फिर 6 लाइन में लिखे जाते हैं. दैट इज द ट्रेडिशन. Okay, according to the tradition, here first of all we need to write 8 line, and second we need to write 6 line. This was done by indicating a shift in mood or change in idea in the 9th line of the sonnet, or this was done by indicating a shift in mood or change. So something is previous. Okay, something is previous, and after that there is something different. जैसे कि पारंपरिक सनेट में पहले 8 लाइन और बाद की 6 लाइन जो है वो अंतर करने की परंपरा थी. ऐसा दूसरे भाग में कभी अपने मनोभावना में परिवर्तन
लाकर या विचार में परिवर्तन लाकर करता था तथा उसके प्रतीक स्वरूप 8 पंक्तियों के बाद एक महत्वपूर्ण विराम या अर्धविराम का प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्टम है। फिर उसके बाद हम देखते हैं द सनेट कम टू इंग्लिश फ्रॉम इटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सनेट जो है ये इंग्लिश में जो आता है वो इटली से आता है। ओके, इटमोलॉजिकली, और इसका जो है सोनेटो इज ए लिटिल पोएम विथ इंस्ट्रूमेंटल अकम्पैनिमेंट, तो जो कि एक छोटा सा पोएम है। ठीक है, जो पोएम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा पोएम है। एंड पेट्रार्चा वाज वन ऑफ द earliest sonnet राइटर इन इटली। पेट्रार्चन ट्रेडिशन जो यहाँ पे कहा जाता है, एक्चुअली पेट्रार्चा जो है वो इटली का एक पहला सनेट राइटर थे और जिनसे प्रभावित होकर के और ये सनेट क्या होता है कि इंग्लिश लोगों भी लिखना चालू करते हैं, है ना। वेट एंड श्योरी ब्रॉट द सनेट टू इंग्लैंड। ये सनेट को 2 व्यक्ति हैं, एक तो वेट एंड श्योरी। ठीक है, ये दोनों इंग्लैंड को ये सनेट लेकर के आते हैं। उसके बाद से सनेट का जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन, ये परंपरा चालू हो जाता है। द पेट्रार्चन सनेट वाज ए पोएम ऑफ 14 लाइन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एन ऑक्टाव एंड सेस्टेट। ठीक है, ये पहले से मैं कह दिया था। ये जो पोएम को 2 भागों में बांटे जाते हैं, एक 8 लाइन वाले हो गए जिसको ऑक्टाव कहा जाता है, और सेसेस्ट यानी 6 लाइन का कहा जाता है। तो श्यूरी मेड सर्टेन और स्ट्रक्चरल चेंज इनटू द सनेट। तो जो श्यूरी होते हैं जिन्होंने लेके आया था, तो उन्होंने क्या किया कि बस उसको 2 भागों में उसको बांटते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते हैं। वो क्या चेंजेस करते हैं? ही डिवाइडेड द 14 लाइन इनटू 3 क्वार्टेरियन एंड ए कपलेट। मतलब 4-4 लाइन में 3 भागों में बांटते हैं और उसके बाद आखिरी का जो 2 लाइन होता है उसको कपलेट कहा जाता है। पहले क्वार्टर करके 3 क्वार्टर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रोवाइड 3 क्वार्टर, ओके, विथ 1 क्वार्टर विथ 4 लाइन, and within that all together become 12, and then after it become 2, that is couplet. So remember, first sonnet that is written, first idea that goes to 8 line, and the second idea continue to 6 line. 8 and 6 previously called octave and sesest. Okay, then after Shuri was another person, one who brought the sonnet to English or to England. He made 3 quarter and 1 couplet. What object generally the Petrarchan, from which was later used to and splendidly by John Milton. Okay. सो एक्चुअली जब पेट्रार्चन जो ट्रेडिशन था उसको बाद में जॉन मिल्टन फॉलो करते हैं। श्यूरी चेंज समथिंग बट द ओरिजिनल फॉर्म, ओके, जॉन मिल्टन फॉलोज। शेक्सपियर यूज द 3 क्वार्टेरियन एंड कपलेट फॉर्म। अभी शेक्सपियर के बारे में जब हम देखते हैं तो शेक्सपियर 3 क्वार्टर करते हैं, करने के बाद 1 कॉपलेट को देते हैं। दिस बिकम द फाइनल टाइप ऑफ इंग्लिश सनेट, द इजी फॉर्म ऑफ 3 क्वार्टेरियन एंड ए कॉपलेट, ऑल इंडिपेंडेंटली राइम्ड। तो इसी प्रकार से ये परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के बाद उसको 3 क्वार्टर करने के बाद 1 कॉपलेट में परिवर्तन किया जाता है, और जो शेक्सपियर अधिकतर ये स्टाइल को फॉलो करते हैं। शेक्सपियर सनेट आर नोन एज इंग्लिश सनेट और शेक्सपियरियन सनेट। वाट एवर द सनेट इज रिटन बाय शेक्सपियर, दैट इज नोन एज शेक्सपियरियन
or that is known as English sonnet. But we need to remember that the sonnet came from Italy. Okay, a man who first written, whose name is Petrarch, Petrarch. Okay. Milton sonnet are written on the classic model. This model is called a Petrarch, and a sonnet or Italian sonnet or the classical sonnet. Okay, now Shakespearean sonnet. Okay, Shakespearean sonnet, that is the style of Surrey. And here John Miltonic sonnet, that is the style of Petrarch, means the old tradition. We call them Miltonic sonnet also. The two type of sonnet are different in structure. तो इसी प्रकार से दो प्रकार का सनेट यहाँ पे देखने को मिलता है। एक मिल्टनिक सनेट जो पुरानी परंपरा को फॉलो करते हैं, और जो शेक्सपियरियन सनेट जो है जो कि वो उसी समय को फॉलो करते हैं, यानी खास करके जो उनका जो सूरी ने जो ट्रेडिशन को लेकर के आया, तो 3/4 1 कॉपलेट, इसको वो फॉलो करते हैं। In Shakespeare's sonnet, the 14 lines are divided into 3 stanzas of 4 lines, each with a couplet at the end. That's very simple. Okay, जो पहले कहा था, शेक्सपियर का जो सनेट होता है वो 3 स्टांजा में डिवाइड होकर के लास्ट में एक कपलेट दी जाती है। इन मिल्टन सनेट these 14 lines are divided into 2 parts. The octave, first 8 lines, after which there is a pause. Okay, and the successed. पहले 8 लाइन लिखते हैं और 8 लाइन लिखने के बाद फिर एक थोड़ा सा वहाँ पे गैप होता है, फिर वो 6 लाइन लिखते हैं। In Shakespeare's sonnet, the 3 quaternion present the situation or develop the thought while the couplet bring it to close. Okay, चारों के चारों जो क्वार्टर है उसमें तो आइडिया होता है ना, आइडिया का डेवलप होता है, लेकिन आखिर के 2 लाइन में वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये तो डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। For example, the sonnet "Let Me Not," the poet describes the nature of true love in the first 12 lines, and in the couplet at the end concludes. जैसे कि "Let Me Not" जो पोएम है, उस पोएम में जो पूरे के पूरे 12 लाइन जो है वो क्या करने लगता है कि पूरा वर्णन करने लगता है लव के बारे में, लेकिन फाइनली जो 2 लाइन होता है वो उसको कंक्लूड कर देता है। तो ये तो स्टाइल शेक्सपियर का है, इसलिए शेक्सपियरियन सनेट कहा जाता है। ठीक है, जो सूरी के द्वारा मतलब किया गया है जो बदलाव। लेकिन जो मिल्टन जो लिखते हैं वो उसका ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, पेट्रार्च के द्वारा जो लिखे गए पोएम है और सनेट है वो उनका ओरिजिनल नाम है। If this be error and often be proved, I never write nor no man ever loved. ये जो 2 लाइनें हैं वो हम लेट मी नॉट मैरिज द ट्रू माइंड इसे लिया है। तो ये जो 2 आखिरी का जो 2 लाइन को हमने देखा है ये पोएम को कंक्लूड कर देता है। इन मिल्टन सोनेट the thought or mood or problem of the poet is presented in the octave. Okay, पहले जो थॉट और मूड जो होता है सबसे पहले वो 8 लाइन में उसको रख देते हैं। ओके, वट एवर हिज मूड, वट एवर हिज थॉट, ये फुल्ली डेवलप दैट इन द 8 लाइन, दैट इज कॉल्ड मिल्टनिक सोनेट। द सेस्टेट
part develop and bring to conclusion in the situation or the problem presented in the octave. For example, in the sonnet on his blindness, Milton posed the problem: doth God exact day labor light the night? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 जो लाइन होते हैं उसमें तो वो अपने आइडिया को डेवलप करते हैं, लेकिन आखिरी के 6 लाइन जो होते हैं उसमें वो क्लोज करते हैं, यानी कंक्लूड देते हैं. तो he had lost his eyesight, he cannot use his poetic talent given by God, he feared God will shield him when he goes before him. In the suspect, Milton finds the solution. God does not need either man, work और his own gift. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिरी के समय पर जब मिल्टन का दृष्टि खो जाता है और तभी वो ऐसे एक मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे एक प्रॉब्लम को दर्शाते हैं कि भाई अब तक मैंने जो क्या नहीं किया, मेरे पास जब दृष्टि था और तब तक मैं उसके दिए हुए कार्य को पूरा नहीं कर पाया, जब जजमेंट का टाइम आएगा तो मैं क्या जवाब उनको दूंगा. लेकिन आखिरी में उसका सोल्यूशन मिल जाता है आखिरी के 2 लाइन में कि ईश्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है, वो किसी से भी कुछ भी करवा सकता है. तो ये होता है दोनों के डिफरेंस, है ना. मिल्टनिक सनेट एंड शेक्सपियरियन सनेट. ओके, तो राइमिंग स्कीम क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ठीक है. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली stand and wait. The rhyming scheme of the Peterson or Miltonic sonnet A B B A C D E C D E, ये हो गया उसका rhyming scheme, ठीक है. The rhyming scheme of the Shakespearean sonnet is A B C D C D E F G G. You need to remember these things. That's very important. It may come to your exam, so that is why this question is very important. So thank you. May God bless you. If you have any requirement, so you can comment, either you can call by my phone number after 2 o'clock. Thank you. May God bless you.